know how to apply Thevenin's theorem. Generally in exam, question on Thevenin's theorem is asked. We find the current through this branch using Thevenin's theorem. So in a quick view, we can solve one problem based on DC circuit, then again on AC circuit, try to solve one question based on Thevenin's theorem. Just take a simple circuit and try to solve it. Okay, be fast, huh? Because we have solved so many circuit problems, now you are able to solve any question based on Kirchhoff voltage law, Kirchhoff current law, you should know. If you are not knowing, it's very big problem for you. Okay, so try to understand how to apply KVL, KCL. If you have any doubt, you can contact me. You come to college, we can discuss. Okay, suppose this is 100 volt, 50 volt. Okay, 15, 10, 1 volt, 2. Thevenin's theorem is find the current through load resistance. Find the current through load resistance using Thevenin's theorem. Find the current through load resistance. Here load is 2 ohm. Find the current through 2 ohm resistance using Thevenin's theorem. Okay, this is your load. Find the current through 2 ohm resistance using Thevenin's theorem. So that resistance can be in this branch, anywhere. It's not always, you can say ki it is at end. It can be anywhere. Okay. So first step is what you have to do. First step, very first step. What is the first step of Thevenin's theorem? It is visible, na? Is it visible? What is the first theorem? First terminal. Identify the terminals. Identify the terminals. Terminal A and B. First step is identify the terminal. Where you want to find current. That is important. Where you want to find current. So I have identified the terminal AB. Then first step, what will you apply? Open circuit terminal AB. Open circuit terminal AB. Draw the open circuit terminal AB by opening the circuit A and B. AB को आपको open करना है and you have to solve it. Okay. The very first step of Thevenin's theorem is open circuit terminal AB. First step of Thevenin's theorem is open circuit terminal AB. AB terminal को आपको क्या करना है? Open करना है. Second step. What is the second step? Second step, apply KVL, KCL, find current, voltage, and try to find this voltage VTH. VTH find करना. ठीक है? Applying KVL and KCL, find VTH. So open circuit terminal means here zero current and here current I. Open circuit means in this branch current is 0 and this branch current is I. ठीक है? I1 I2 नहीं होगा, सिर्फ एक ही करंट होगा I, क्योंकि हमने टर्मिनल ओपन कर दिया. Since the terminal is open circuited, the current in this branch is 0. Anybody having any question? Hello? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, राइट? तो फाइंड I किसी का आया क्या? Apply 2 ampere. Anybody got I? 2 ampere. 2 ampere, right? 2 ampere. 100 minus 15I minus 10I minus 50 is equal to 0. ये आपको सबको समझना चाहिए. राइज है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप. Then I is equal to 2 ampere. ठीक है? And the direction of current is this. I is equal to 2 ampere. ठीक है? Now write KVL in second loop. Kirchhoff voltage law in second loop पे Kirchhoff voltage law लिखो. Write Kirchhoff voltage law in second loop. This voltage is VTH. Write Kirchhoff voltage law in second loop. 5 ohm में current कितना है? What is the current in this 5 ohm? 5 ohm में current कितना है? Anybody? Current in this branch
यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे कितना है करंट इन 5 ओम, करंट इन 5 ओम कितना है, व्हाट इज द करंट इन 5 ओम, बताएंगे कौन? 0 ओपन सर्किट में 0 से यस और नो, अरे हमने ओपन कर दिया 5 ओम में करंट 0 होगा ना, सिंस इट इज ओपन सर्किट मींस 5 ohm will be 0, right? So 5 into 0, next drop हो रहा है तो 1 volt, drop 1 volt, minus VTH plus 50, ऊपर से नीचे ड्रॉप है ना, ये राइज, प्लस 10 into 2 is equal to 0. ये इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए सबको, सबसे टॉप में लिखा है 5 into 0 minus 1 volt minus VTH plus 50, देखो ये माइनस से प्लस राइज, एंड ये करंट ऊपर से नीचे आ रहा है 2 एम्पियर, नीचे से ऊपर केवीएल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 into 2 is equal to 0. ये अप्लाई करना आना चाहिए आपको केवीएल, and if you are not able to apply this KVL in this loop, then VTH आपका राइट नहीं आएगा, VTH नहीं आएगा तो you will not get a correct answer. Then find VTH. What is the value of VTH? VTH किसी का आया क्या आंसर बताओ? 69. What is the value of 69? VTH कितना आ रहा है? 60? 69 आ रहा है, ठीक है, VTH 69 आ रहा है। देखो वी आर टू बी वेरी प्रॉम्प्ट इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मैंने पहले ही बोला है 10 days बैक कि टेक सम बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, सी सर्किट एनालिसिस आपको डेली करनी पड़ेगी। बीइंग योर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, बिना सर्किट एनालिसिस के आगे के सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे, किसी को नहीं आ रहा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्क, आपको बहुत प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा। डिवोट योर टाइम, जितना टाइम आप दे सकते दो, टाइम देना ही पड़ेगा। 69 वोल्ट आया सबका, किसी को कोई कंफ्यूजन है? 50 plus 20 70, 70 minus 1 69, VTH is equal to 69 volt. Next step, deactivate all the energy sources, energy sources को deactivate करो और RTH निकालो। Deactivate all the energy sources, deactivate all the energy sources, energy sources को deactivate करो, deactivate all the energy sources, कोई करंट नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, deactivate all the energy sources and find ZTH या RTH, वो जो बोलते हैं वो आपको निकालना। Deactivate all the energy sources, find RTH, निकालो। find equivalent resistance कितना आ रहा बताओ, tell me what is the equivalent resistance, what is the equivalent resistance? RTH की वैल्यू कितनी आ रही है? 11. चेक करो, all of you getting 11? 150 by 25 कितना हो गया? 665 11 आ रहा है सबका आंसर? Yes sir. RTH is equal to क्या हो जाएगा? 15 parallel 10 plus 5, 15 into 10 by 15 plus 10 plus 5, you will get a 11 answer. ठीक है, next step, draw Thevenin's equivalent circuit. Next step, draw Thevenin's equivalent circuit. Draw Thevenin's equivalent circuit. Draw Thevenin's equivalent circuit. VTH, RTH, हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम थी ना? What will be the I? Final IL is equal to
VTH अपॉन RTH प्लस RL। आंसर बताओ जल्दी। 69 अपॉन 11 प्लस 2। Okay, getting everybody? I hope so. 5.307। जो भी है फाइनल आंसर विल बी 13 डिवाइडेड बाय 69, तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाए। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज वो काम होगा नहीं। ठीक है ना, थोड़े थोड़े आपके सर्किट्स डिफिकल्ट भी होते जाएंगे, थोड़े सिंपल, इतने सिंपल सर्किट्स नहीं होते हैं। तो एट दैट मोमेंट देयर इज नो नीड टू वरी, पैनिक। आपको अनलेस एंड अनटिल आप न्यूमेरिकल्स ज्यादा सॉल्व करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑन डीसी सर्किट, फिर हम एसी सर्किट का भी क्वेश्चन करेंगे। एक सिंपल सा प्रॉब्लम और करने की कोशिश करो। Find current IL using Thevenin's theorem. Find current IL using Thevenin's theorem. सेम स्टेप्स फॉलो करो, बट बीच में आपको लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल ए बी बनाना। फाइंड IL यूजिंग Thevenin's theorem. फर्स्ट स्टेप, टर्मिनल ए बी। टर्मिनल ए बी बनाओ। बनाए सबने? ए बी बनाए सबने टर्मिनल? करंट कहां फ्लो होगा? बाहर होगा फ्लो, अंदर कुछ भी होगा। यू टेक इट एज अ बिग लूप। ठीक है, ओके, यू टेक इट एज अ बिग लूप। गेटिंग माय पॉइंट ना? देखो, बीच से आपने ओपन सर्किट कर दिया और यहां पे आपको वोल्टेज मेजर करना है। VTH is not voltage source, it is a voltage to be measured. VTH is not voltage source, it is a voltage to be measured. ठीक है, तो आपको VTH at सेंटर मेजर करना है। ठीक है, 100 वोल्ट टर्मिनल क्या है, आपको 2 ओम रेजिस्टेंस सेंटर में, तो सेंटर में मैंने रिमूव किया, तो वहां पे आपको वोल्टेज मेजर करना है। तो करंट कहां फ्लो होगा? This current will be 0 because this is open circuit. The current will flow in outer loop. So apply Kirchhoff voltage law in this outer loop. Apply Kirchhoff voltage law in outer loop and tell me the what is the value of current. क्या होगा? 100 minus 20i minus 30i minus 50 is equal to 0. इक्वेशन में अगर किसी को एनीबॉडी हैविंग अ डाउट इन इक्वेशन जस्ट आस्क मी। किसी को कुछ भी डाउट है इक्वेशन में तो पूछ सकता है। 1 एम्पीयर वोल्टेज लॉ आउटर लूप में अप्लाई किया। वी हैव अप्लाइड किर्चॉफ वोल्टेज लॉ ऑन आउटर लूप। 100 राइज माइनस 50i माइनस 30i माइनस 50 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस इक्वेशन में तो दे कैन आस्क। ठीक है, केवीएल कैन बी अप्लाइड ऑन एनी लूप। आप कहीं से भी शुरू करो, घूम फिर के वहां आ जाओ। आप ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो, बाहर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट कितना आ रहा है? 1 एम्पीयर। 100 minus 50, 50 minus 50, 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर आ गया, राइट? नाउ फाइंड VTH।
मुझे मालूम है 1 एम्पियर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मुझे कोई नाउ यू फॉर फाइंडिंग VTH यू कैन अप्लाई KVL इन दिस लूप और यू कैन अप्लाई KVL इन दिस लूप और दिस लूप में आप अप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन फर्स्ट 100 माइनस 20 into 1 और ये प्लस से माइनस ड्रॉप माइनस VTH इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। 100 माइनस 20 इंटू 1, आंसर 1 है, तो 20 इंटू 1, ये 1 यहां से जा रहा है डायरेक्शन ये, इसलिए ड्रॉप माइनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VTH? VTH कितना आ रहा है? इट इज 120 नहीं 80 सॉरी 88, ठीक है 80 वोल्ट। अब RTH निकाल के बताओ मुझे, बीच में कितना आएगा RTH? क्विक में फट से आंसर बताओ। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस? सेकंड स्टेप, डीएक्टिवेट ऑल द एनर्जी सोर्सेस, ऑल द एनर्जी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करो और RTH निकाल के बताओ। 50। अरे पहले आप डीएक्टिवेट करो, ऑल द एनर्जी सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड एंड देन कैच द टर्मिनल AB एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। क्विक में मत करो, पहले डीएक्टिवेट करो, डीएक्टिवेट ऑल द एनर्जी सोर्सेस एंड मेजर क्रॉस टर्मिनल AB। कितना आया बताओ? एनीबॉडी? रेजिस्टेंस कितना आ रहा है RTH AB टर्मिनल में? एनीबॉडी? व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल AB? अरे आप लोग ने डीएक्टिवेट किया क्या? फर्स्ट डीएक्टिवेट, प्लस माइनस साइन कुछ नहीं होता है डीएक्टिवेट करने में, VTH भी नहीं होता है। 50 आ रहा सर। निकाले 12 AB टर्मिनल में निकालो ना, AB टर्मिनल पे निकालो, A और B टर्मिनल में, यहां पे नहीं देखो आप। 12 12 आ रहा? आर यू गेटिंग 12 आंसर? yes sir Just you see carefully, A and B terminal आपकी 30 ohm and 20 ohm are in parallel. Be careful. Just see. Question is asked to measure resistance across terminal AB. Find resistance या impedance across terminal AB. You have to look on terminal AB. A terminal आपको A और B टर्मिनल को देखना है, ये सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में सीरीज के बीच में A है। अगर आप इसको सीरीज में 50 ओम ऐड करते हो तो A टर्मिनल आपका यहाँ पे है ना, ये दोनों के बीच में है ना, और B टर्मिनल आपका यहाँ पे है। आंसर कैसे 50 आया? 50 तो हो गया वो सीरीज में ऐड करके, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो आपको 50 नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल है 30 इधर है और एक 50 इधर है, 20 इधर है, 12 आ रहा बराबर। पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबको समझ में आया ना? 30 and 20 are in parallel, so your answer will be 12 ohm. Is it clear सबको? 20 into 30 divided by 20 plus 30 is equal to 12 ohm. ठीक है? क्लियर सबको? Then draw Thevenin's equivalent circuit. Draw Thevenin's equivalent circuit. Find current. Draw Thevenin's equivalent circuit. VTH, RTH, AB.
reconnect the resistance, 2 ohm resistance, 12 ohm, 80 ohm. Find current. 5.714. IL is equal to VTH upon RT 2.30. plus RL. 5.714. 12 plus 2. 5.714. So all of you have to be very careful. All of you have to be very careful while calculating the values of VTH, RTH. तो आप सेम क्वेश्चंस को क्रिश्चॉफ वोल्टेज लॉ से सॉल्व करके देखो, क्रिश्चॉफ करंट लॉ से सॉल्व करके देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करके देखो, सब में आंसर आपको यही आएगा. ठीक है, आंसर विल नॉट चेंज एट ऑल. You have to solve this same question by Kirchhoff voltage law method, Kirchhoff current law method, superposition theorem method and last Thevenin's theorem. आंसर मैच कर रहे होंगे तो आज ये सॉल्व करके देखना. अगर आपके आंसर मैच कर रहे हैं, इफ योर आंसर इज मैचिंग, देन यू कैन से, देन यू कैन डायरेक्टली से ओके मुझे आ गया. देन यू कैन से ऑफ कोर्स मुझे आ गया, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, आपको चारों मेथड से देखना पड़ेगा सॉल्व करने, तो कुछ ना कुछ अदरवाइज मिसिंग है. ठीक है, फर्स्ट बाय मैश मेथड, देन नोडल मेथड, देन सुपरपोजिशन थ्योरम मेथड, देन थेवेनिन्स थ्योरम. अगर चारों से आंसर आएगा तो फिर कॉन्फिडेंस है. दिस इज ऑल अबाउट डीसी सर्किट. अभी आपको एसी सर्किट के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो वन क्वेश्चन वी कैन सॉल्व फॉर AC circuit. Same steps you have to follow. Only thing is you have to apply, use complex mode. Complex mode में आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा बढ़ता है, otherwise there is no need to panic. Thevenin's theorem में जो whatever the steps we are following in DC circuit, same steps you have to follow for AC. बस क्वांटिटी आपकी चेंज हो जाएगी. इट बिकम्स 100 एंगल 0 बन गया आपका. पोलैरिटी आ गई, अब J5 हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस 2 ओम बन गया. कैपेसिटर नेगेटिव होता है, पता है ना आपको. Now this becomes a AC circuit. Find current using Thevenin's theorem. Find current using Thevenin's. I hope so. Board is visible. The load resistance जो ZL है वो कितना है? 5 plus J6. J everybody knows ना? Capacitor inductive reactance positive J, capacitor reactance negative J. तो इसके भी सेम स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप ओपन सर्किट टर्मिनल AB टर्मिनल बनाओ आप इसको. फर्स्ट स्टेप ओपन सर्किट टर्मिनल AB. ओपन सर्किट करने के बाद आप क्या करोगे? देन यू विल फर्स्ट स्टेप ओपन सर्किट टर्मिनल AB. ओपन सर्किट करो आप इसको. किया ओपन. देन फाइंड करंट I इन दिस ब्रांच. इस ब्रांच में I निकालो. I कितना आया बताओ. फर्स्ट स्टेप ओपन सर्किट टर्मिनल A.
इसको ओपन करके छोड़ दो। देखो यू विल फाइंड कि जो हम मैश मेथड एंड नोडल मेथड्स में करते थे वो सर्किट इज डिफिकल्ट। अगर 3 लूप 4 लूप है तो डिफिकल्ट होता था, लेकिन थेवेनिन थ्योरम में आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जा रहा है, लास्ट में सर्किट बहुत छोटा हो जा रहा है। जैसे जैसे सिंप्लीफाई होते जा रहा है आपका सर्किट, इट बिकम्स सिंपल एंड एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैन बी रिड्यूस्ड इनटू सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सिंगल इंपीडेंस। तो आपकी कैलकुलेशन पार्ट इजी होती है थेवेनिन थ्योरम में। तो आई कितना आया कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इस ब्रांच में कितना आ रहा है कोई बता सकता है कितना आ रहा है? क्या होगा? 100 राइस माइनस J5 I माइनस 2I माइनस और एक माइनस J2I इज इक्वल टू 0। वैसे I1 माइनस I2 होता है, लेकिन बिकॉज यहां पे करंट 0 है इसलिए हमारे पास I माइनस 0 I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I बताओ? I की वैल्यू बताओ। आई की वैल्यू बताओ। जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ आई। एनीबॉडी गॉट द आंसर? नहीं समझ रहा? सब साइलेंट हो गए। 2i plus 3ji equal to 100. What will be the value of I? $15.38 minus 23.07 I. इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। 15 पॉइंट कितना बोले? 15.38 minus 23.07 I. नहीं 23.07 I. नहीं, कुछ गलत है। I इज इक्वल टू आपका आएगा 100 अपॉन J5 है और ये माइनस J2 है, तो 2 प्लस J3। इसको सिंपल बहुत सिंपलीफाई करके सॉल्व करो। ये देखो इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। ये इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 15 माइनस 23 हो रही है। हो सकती है मे बी। और पोलर फॉर्म में देखोगे तो क्या आएगा? 20 एंगल समथिंग आएगा माइनस में। चेक करो जल्दी। नहीं, कुछ डिफरेंट ही आएगा। डिफरेंट आएगा, 20 नहीं आएगा। जस्ट चेक करो कितना आंसर आ रहा है, बताओ मुझे। दिस इज राइट।
15.38 minus 23J. This is right. This is right. हाँ, आप लोग को थोड़ा केयरफुली चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसको पोलर फॉर्म में भी कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप, डीएक्टिवेट ऑल द एनर्जी सोर्सेस. 15.23 and minus 23J is right. 23J is right. ठीक है? अब डीएक्टिवेट ऑल द एनर्जी सोर्सेस. एनर्जी सोर्सेस से डीएक्टिवेट करो एंड ZTH निकालो. जल्दी बताओ. कैसा होगा? 2 plus J5 सीरीज में है, ये पैरेलल में है, फिर ये सीरीज में. ZTH की वैल्यू बताओ. विजिबल दिख नहीं रहा सर वो. सर VTH निकालना है ना पहले. हाँ ना सर, पहले VTH निकालना पड़ेगा ना. VTH निकला नहीं क्या? नहीं ना, अभी आई निकाला ना सिर्फ. हाँ तो निकाल लो VTH. VTH इज इक्वल टू, VTH क्या होगा? सिक्स इंटू 0 माइनस VTH, ये हो जाएगा प्लस माइनस ऊपर से नीचे माइनस J2 इंटू I इज इक्वल टू 0. VTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस J2I. ठीक है. VTH इज माइनस J2 इंटू I. I की वैल्यू रख दो आप 15.38 माइनस 23. बताओ कितना आ रहा है? इंटू कितना करना पड़ेगा आपको आंसर को? माइनस 2I. माइनस 46.153 माइनस 30.76 है. हाँ जो भी, माइनस 46.15 153 माइनस 30.76 अरे अरे अरे. ठीक है. दिस विल बी योर VTH. ZTH बताओ. ZTH को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. 2 plus J5 parallel minus J2 divided by 2 plus J5 minus J2. ऐसा पूरा सॉल्व करो आप कैलकुलेटर में रख के, ब्रैकेट डाल के. 2 plus J5 is in parallel with minus J2 upon 2 plus J5 minus J2. इसको ऐसा पैरेलल में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. प्लस 6 करोगे तो ZTH मिलेगा. ठीक है ना? AC सर्किट में ऐसे सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको. J के लेके सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है. आपने डीएक्टिवेट किया ऑल द एनर्जी सोर्सेस को, अगर डीएक्टिवेट किया ZTH ऐसे मिलेगा. Uh, 7.84 minus 2.76 I. आ रहा है सबका? 7.24 माइनस 2.64. 7.84 minus 2.76 I. मेरा 6.61 माइनस 2.92 आया. हाँ दोनों चेक कर लो एक बार फिर से. थोड़ा ब्रैकेट यूज करना. 2 plus J5 इंटू माइनस J2 है. 2 plus J5 माइनस J2 है प्लस 6. व्हाटएवर में भी आंसर सबका सेम आना चाहिए. दो आंसर होते ही नहीं है, याद रख लो, मैंने पहले ही बोल दिया. देयर इज वन एंड ओनली वन आंसर.
देयर आर नो टू आंसर, टू सॉल्यूशंस। अब ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो एंड फिर आई निकालो। ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एंड देन फाइंड आई। तो आपका ये हो गया VTH, ये हो गया आपका ZTH, देन ये हो गया आपका ZL। IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाय ZTH प्लस ZL। हमने लिखा था 5 + 6J कुछ था ZL, वो एज इट इज डाल दो। ये देगा आपको सर 6.615 आ रहा है ना, 7 पॉइंट नहीं आ रहा है आंसर। 6.615 माइनस 2.92 आया आ रहा। माइनस आई कितना है, माइनस 2.923 आए। ठीक है। उसको आप पोलर फॉर्म में भी कर सकते हो, शिफ्ट प्लस, या कॉम्प्लेक्स में जाके r थीटा फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो आंसर भी सही है। ठीक है, अगर मीटिंग क्लोज हो जाएगी तो फिर से रिजॉइन कर लेना, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू कैन रिजॉइन अगेन। हाँ, थोड़ा सा और 10 मिनट्स हम कैरी ऑन करेंगे।